Students, good morning. Myself Anurag Singh from Silver Singh Children Academy, and today I am here in front of you to again explaining the topic application of derivative, in which the subtopic is what? Tangent and normal. In the last video I was explained NCERT questions from 1 to 9, and today I am going to solve from question number 10 to onwards. So be careful and watch the video, like करो, subscribe करो channel को. Question number 11, sorry, sum number 10. What is given in question number 10? Find the equation of all the lines. Question number 10. Find the equation of all lines having slope minus 1. Find equation of all lines having slope minus 1. Slope is given. Slope is equal to minus 1. That are tangent to the curve. That are tangents to the curve. Y is equal to 1 upon x minus 1 for x is not equal to 1. Find the equation of lines having slope minus 1 that are tangent to the curve y is equal to 1 upon x minus 1. Equation of all the lines. You have to find equation of all the lines. ना having slope कितना दिया बेटा? -1. मीन्स जिस लाइन का आपका जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है उसका स्लोप क्या है? -1. दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1. राइट ना. अब अगर आपको स्लोप गिवन है, क्या गिवन है बेटा? स्लोप गिवन है अगर आपको, तो स्लोप के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, हैविंग स्लोप कितना दिया बेटा? -1 गिवन है, तो डेफिनेट सी बात है कि स्लोप की वैल्यू को अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, स्लोप इज -1. राइट ना. अगर हम स्लोप की वैल्यू को एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे भी स्लोप ही निकालते हैं हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते हैं. दैट मतलब इसका डेरिवेटिव इस वैल्यू के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. यस और नो? तो सॉल्यूशन का जो पहला स्टेप बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? बोलो फटाफट बोलो. y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. देयरफॉर y के लिए बेटा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन u का डेरिवेटिव लगेगा बेटा. किसका डेरिवेटिव लगेगा? 1 अपॉन u. That is d by dx of 1 upon u is equal to minus 1 upon u square into du by dx. ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे. अगर उस फार्मूले का मैं एप्लीकेशन करूँगा यहाँ पे तो क्या आएगा? 1 upon that is minus 1 upon u. u means x minus 1. That is x minus 1 the whole square into d by dx of x minus 1. That means dy by dx is equal to minus 1 upon x minus 1 the whole square into derivative of x minus 1, that is 1. Right now, overall we can say that dy by dx is equal to minus 1 upon x minus 1 the whole square. Right? Are ended out. अब बेटा उसकी कंडीशन पे हम लोग आते हैं बेटा. What is the given condition? Condition is that slope is equal to -1 and this is also slope. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या लिखेंगे बेटा? देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. व्हाट इज गिवन कंडीशन? फटाफट बोलो बेटा. dy बाय dx इज इक्वल टू -1. dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1. दैट मीन्स -1 अपॉन x minus 1 the whole square is equal to -1. minus cancelled out. Therefore x minus 1 the whole square is equal to 1. Yes or no? That means x minus 1 is equal to plus minus 1. Therefore x minus 1 is equal to 1 and x minus 1 is equal to -1. इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो x is equal to 2 and here x is equal to 0. That means we get the values of x, two values. One is 2 and second is 0. When x is equal to first value assume करते हैं बेटा. When x is equal to 2, when x is equal to 2, therefore ध्यान दो बेटा,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स बोला है ना, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 upon 2 minus 1, that is 1 upon 1, therefore y is equal to 1, therefore point is what? Point is 2 comma 1, therefore equation of tangent is equal to y minus y1 is equal to dy by dx x minus x1. We can say that y minus y1 is 1 is equal to dy by dx is what? Minus 1 slope na, that is minus 1 into x minus x1 is 2. Y minus 1 is equal to minus x plus 2. Transfer ले लो बेटा, x plus y is equal to 3. That is the equation number 1. Case 1. Is that clear? Second case. ये क्या था बेटा? Case 1. Now case 2. Case 2. Case 2 में क्या लेंगे बेटा हम लोग? When x is equal to 0. When x is equal to 0. Therefore, y is equal to 1 upon 0 minus 1. 0 minus 1, that is minus 1. Therefore, point is equal to 0 comma minus 1. Therefore, equation of tangent y minus y1. अगेन y1 की वैल्यू कितना बेटा? -1, तो +1 हो जाएगा, दैट इज -1 x minus 0. ओवरऑल क्या बनेगा? y plus 1 is equal to minus x. ट्रांसफर ले लो बेटा. देन द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज व्हाट? x plus y plus 1 is equal to 0. That is the second answer. Is that clear? Any doubt? If you have any doubt, then you can ask me. Right ना बेटा, काफ़ी आसान सा पार्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान देने का काम है बस. गिवन कंडीशन पे अगर आप अपने अच्छे से फोकस करते हो तो दैट इज़ नॉट मच हार्ड, इट्स वेरी इजियर फॉर यू टू कंप्लीट द टॉपिक. राइट ना. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स. सेम क्वेश्चन है बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13. They are all 4 questions. All the 4 questions are same. Now we are going to solve question number 13. बेटा सिर्फ स्लोप की वैल्यू को बार बार चेंज कर दिया है बस, बाकी क्वेश्चन सेम है. तो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे. फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछो. वी आर हियर फॉर यू. ओके ना. वी आर हियर फॉर यू, स्पेशली फॉर यू. राइट ना. तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, आप हमसे पूछो, किसी भी टाइम पूछो बेटा, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. हाँ ना. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व. फिर उसी पे आ गए बेटा हम लोग. कहाँ पे? पॉइंट ऑन द कर्व, जो अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक किया था. फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस. आई थिंक ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूँ. Now we are going to solve question number 15. Find the equation of tangent line to the curve y is equal to x square minus 2x plus 7, which is parallel to now students, we are going to solve question number 15. What is given in question number 15? Find the equation of tangent to the curve y is equal to x square minus 2x plus 7. Y is equal to x square minus 2x plus 7, which is parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0. Equation of tangent line क्या करना है बेटा? सम नंबर 15. Find equation of tangent line. Equation of tangent line to the curve y is equal to x square minus 2x plus 7. राइट ना बेटा. ध्यान दो,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, दैट मीन्स इस कर्व का dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप। किसका स्लोप मालूम हो जाएगा, टेंजेंट का। तो सबसे पहला स्टेप बेटा, स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, डिफ्रेंशिएट with respect to x, therefore dy by dx is equal to what is derivative of x square, 2x minus 2। ये हो गया बेटा। अब बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन ना, नहीं सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका भी हम लोग क्या निकाल लेते हैं बेटा, स्लोप ऑफ द लाइन। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 9, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2। देखो ध्यान से बेटा, ये क्या है, टेंजेंट है और ये क्या है, लाइन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड लाइन, that means tangent and line are parallel. According to the condition, tangent line is parallel to the given line. Since tangent is parallel to the given line, therefore slope of tangent is equal to slope of line। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, दोनों पैरेलल हैं इसलिए दोनों के स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज व्हाट, 2x minus 2 is equal to slope of line is 2, therefore 2x is equal to 4, x is equal to 4 by 2, therefore x is equal to 2। x की वैल्यू मिल गई। आपको क्या निकालना है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। किसी भी लाइन का इक्वेशन, टेंजेंट भी क्या है, एक लाइन है। लाइन का जब भी इक्वेशन निकालना होता है तो फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर बेसिक फॉर्म में देखा जाए तो, बेसिक फॉर्म में अगर किसी भी दुनिया की कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो हमें ये दो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। एक तो उसका पासिंग पॉइंट गिवन हो और दूसरा उसका क्या गिवन हो, स्लोप गिवन हो। एक क्या गिवन हो बेटा, पासिंग पॉइंट गिवन हो और दूसरा क्या गिवन हो, उसका स्लोप गिवन हो। अगर पासिंग पॉइंट और स्लोप दोनों गिवन होते हैं ना तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। हम आपको टेंजेंट बोल रहे हैं बट टेंजेंट इज आल्सो अ लाइन, टेंजेंट इज आल्सो अ लाइन। जैसे अगर मैं बोलूं कि अरे यार मैं तो टीचर हूं तो आई एम आल्सो अ ह्यूमन बॉडी ना, पहले मैं ह्यूमन हूं फिर उसके बाद टीचर हूं ना। तो ऐसे ही बेटा टेंजेंट भी क्या है, एक लाइन है, उसके बाद वो टेंजेंट है। तो लाइन के किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। दैट मीन्स फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वी नीड टू थिंग्स, वन इज पासिंग पॉइंट एंड सेकंड इज स्लोप। बट वी हैव नो पासिंग पॉइंट। स्लोप तो मान लो दिया हुआ है 2x माइनस 2 दिया, या उसको ना एज्यूम करके इसको भी ले सकते हैं बिकॉज दे आर सेम, राइट ना। बट पासिंग पॉइंट तो चाहिए। क्या चाहिए बेटा, पासिंग पॉइंट, वेयर x इज गिवन, x इज इक्वल टू 2। अब अगर x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे बेटा y के प्लेस पे, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर नाउ y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, दैट विल बी 0। y इज इक्वल टू 7। देयरफॉर टेंजेंट passes through 2,7। अब लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल चीज। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन is equal to dy by dx x minus x1. That means y minus 7 is equal to dy by dx is 2 into x minus 2. ब्रैकेट ओपन करो बेटा, y minus 7 is equal to 2x minus 4। ट्रांसफर ले लो तो y is equal to 2x minus 4 plus 7।
y is equal to 2x plus 3. This is the equation of tangent. What? Equation of tangent. समझ में आया? कोई डाउट है बेटा? अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, राइट ना? काफ़ी आसान था. मैंने क्या किया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा. You have to find equation of tangent which is parallel to the line. Line is what? 2x minus y plus 9 is equal to 0. First of all, find the write the curve, then find derivative. This is what? dy by dx. This is the slope of tangent. dy by dx is slope of tangent on the curve. Now line का इक्वेशन लिखा बेटा मैंने, and y is equal to mx plus c के हिसाब से m is equal to 2. तो this is what? Slope of tangent, and this is what? Slope of line. So according to the condition, tangent is parallel to the given line, therefore slope of tangent is equal to slope of line. Substitute them and we will get value of x which is equal to 2. Now what is the value of x is equal to 2? If x is equal to 2, then y is equal to 2 square minus 2 into 2 plus 7. Substitute here kiya beta, then y is equal to 7. That means tangent passes through the point 2 comma 7. If tangent is passes through the point 2 comma 7, therefore the equation of tangent y minus y1 and dy by dx x minus x1 and so on. Right now substitute the values and you will get your answer. काफ़ी आसान सा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है. लगाना क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. इफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट एज लाइक मैथ, then it's very hard. But if you are trying to solve it like enjoy की तरह ट्रीट करो, उसको डेली लाइफ में यूज करो. सोचो यार कि ऐसा हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है ना, तो वो मैथ जो है वो आपका आसान हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी नॉर्मल रहेगा. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16. सो दैट क्वेश्चन नंबर 16, what is given in question number 16? Bolo. So that the tangents to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at the point where x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel. So that the tangents to the curve, so that tangents to the curve y is equal to 7x cube plus 11. Question number 16. Y is equal to 7x cube plus 11. X is equal to 2 and x is equal to minus 2. That is given, right now. बेटा आपको प्रूफ करना है कि इसके जो दो टेंजेंट्स होंगे. हाउ मेनी टेंजेंट्स? 2 टेंजेंट्स. One tangent at x is equal to 2 and other tangent at x is equal to minus 2. They are parallel. क्या प्रूफ करना है? फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. सो दैट टेंजेंट्स इस कर्व के ऊपर कितने टेंजेंट बनेंगे? 2 टेंजेंट. वन टेंजेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 एंड सेकंड इज एट x इज इक्वल टू माइनस 2. प्रूफ करना है कि दे आर पैरेलल. तो सबसे पहला स्टेप बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. देयरफॉर dy by dx is equal to 21x square plus 0. That means dy by dx is equal to 21x square. This is what? Slope of the tangent. अब इसको हम यहाँ पे x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे. Therefore dy by dx when x is equal to 2, that is 21 into 2 square is equal to 21 into 4. 4 1 ja 4, 4 2 ja 8. That is what? 84. Next, dy by dx at x is equal to minus 2. At x is equal to minus 2. यहाँ पे x is equal to 2 लिया था. अब dy by dx at x is equal to minus 2, that is 21 into minus 2 square is equal to 21 into 4. 4 1 ja 4, 4 2 ja 8. That means 84. यहाँ पे देख लो बेटा, इसका वैल्यू 1, इसको हमने क्या दिया? 2 दिया. फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर सेम. और याद करो बेटा, आपको पढ़ाया गया था, if two slopes are equal, then they are parallel. तो क्या लिखेंगे बेटा? Therefore from 1 and 2 slopes
are equal, therefore they are parallel to each other, right? If you have doubt then you can ask. समझ में आ रहा है ना बेटे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं और आप मस्त घूम रहे हो, हाँ? आप ये समझ लो, हम एक एक बंदे को पहचान रहे हैं, एक एक बंदे को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं. स्कूल खुलेगा तो हम आपसे मिलेंगे. आप मस्ती कर रहे होगे तो भी पता चलेगा, नहीं मस्ती कर रहे होगे तो भी पता चलेगा. क्लियर? अगर आपने नोट्स वगैरह नहीं कंप्लीट किया तो दैट इज़ योर फॉल्ट. दैट मीन्स कि बेटा आप सोचो, आप 12th में हो, यू हैव बोर्ड एग्ज़ाम, राइट ना? बोर्ड एग्ज़ाम है तो डेफिनेट सी बात है, जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा यार तो बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ाम भी बोर्ड की तरह होता है, हाँ? तो 10th वाला बोर्ड नहीं है, इट इज़ 12th बोर्ड. 10th वाले बोर्ड में आसानी से पास हो जाते थे, सोचते थे कि चलो ठीक है फटाफट निकल जा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये हो जाएगा वो हो जाएगा. अभी तो ऐसा है, 12th में हो, 12th स्टैंडर्ड में इंटरनल में अलग पास होना पड़ेगा और एक्सटर्नल में अलग. किसी एक में भी अगर आपके मार्क्स कम हुए ना बेटा तो यू कैन नॉट प्रमोटेड फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन. सो बी केयरफुल. अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है अपने पास. इतना टाइम है कि अगर आप डेली 5-6 घंटे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो सारे सब्जेक्ट्स कवर अप हो जाएंगे. क्लियर? इसलिए बहुत ध्यान से करो. स्टडी का मैटर है बेटा, ये आपके लाइफ का मैटर है. डोंट फॉरगेट इट कि व्हाट आर यू डूइंग. मैं आपके सामने नहीं हूँ, आपके साथ नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि हम आपके लिए नहीं हैं. वी आर हियर वर्किंग फॉर यू एंड फॉर ओनली फॉर यू. तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप उस चीज़ को फॉलो करो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. घर पे रह के आप वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो. यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइजर, बाहर नहीं निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग कंप्लीट करना, गाइडलाइंस जितनी भी गवर्नमेंट की थ्रू दी गई है उसका पालन करो और अच्छे से रहो. ओके, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 17. Find the point on the curve. Question number 17. Find the point on the curve y is equal to x. Find the point on the curve y is equal to x, at which slope of tangent is equal to y coordinate of the point. Find the point on the curve at which slope of tangent is equal to y coordinate of the point. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17. घुमाया है ना उसमें गोल को, ऐसा घुमाया है कि आपको मजा आ जाएगा. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube, at which the slope of the tangent, is equal to the y coordinate is equal to the y coordinate of the look here, find point on the curve. Point कहाँ पे निकालना है? इस कर्व पे निकालना है. At which the slope of tangent is equal to the y coordinate of the point. Right now means अगर मैं बोलूं सॉल्यूशन पे आऊं, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x से रिलेटेड पे रखना है और y कोऑर्डिनेट y से रिलेटेड पे. यही है ना? क्या होगा बेटा? dy upon dx is equal to 3x equal to 3x square. Find the point on the curve at which the slope of tangent is equal to the
y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एज्यूम कर लो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कंडीशन है बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट मीन्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स y, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू y, yes or no? 3x square is equal to y, therefore x square is equal to y upon 3। अब अगर x square is equal to y upon 3 आया, दैट या छोड़ दो, इसी को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं y is equal to what बेटा? 3x square। नाउ सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ y इन द गिवन कर्व, सब्सटीट्यूट y in the given curve, in the given curve, therefore देख बेटा कर्व क्या है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y की जगह पे क्या अप्लाई करेंगे? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से ये कटेगा, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू x। व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू, व्हेन x is equal to 3, then y is equal to 3x cube, that means y is equal to 3 cube, then for y is equal to 27, therefore point is equal to 3 comma 27। is that clear? find the point on the curve, find the points on the curve। अब यहाँ पे देखो बेटा, मैंने एक x को कट किया था, जो कट किया था वो भी याद आता है, एंड x इज इक्वल टू 0। जब वेरिएबल कट होता है बेटा, फाइनल एकदम कैंसिल हो जाता है, तो दैट विल बी व्हाट? 0। तो दूसरा केस ये आएगा केस 1। अभी केस 2, व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0, देन y is also equal to 0, therefore point is 0, 0। तो ये दो पॉइंट्स मिलेंगे बेटा, एक 3, 27 एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? 0, 0। इज दैट क्लियर? ये काफ़ी आसान से पार्ट्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो आपको सॉल्व करना रहता है इस टॉपिक में। हाँ, तो ये है आपका क्या बेटा? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी याद आ रहा है यार, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कई बार पढ़ा दिया ना, तो वो ध्यान में वही आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे थे? टेंजेंट एंड नॉर्मल का, राइट ना? तो टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे बेटा। चलो नेक्स्ट